Very good afternoon, students. Now we comes on the fifth lecture. That is our lecture fourth on that fifth unit. Sorry. And the next topic, that is the application of differential equation. मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखे हैं यूनिट फोर्थ में, यूनिट फिफ्थ में, सो देर आर सम अप्लीकेशंस रिगार्डिंग टू दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं. सो फर्स्ट इज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी. अब ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या रहती है? इफ देयर एग्जिस्ट अ फैमिली ऑफ कर्व्स and that perpendicular to some another family of curves, and then that is called as a orthogonal trajectory. orthogonal का मीनिंग है perpendicular. मतलब अगर ऐसे फॉर्म में आपकी कर्व है, there is exist a family of curve. that family of curve, it is suppose denoted by C1 and that is denoted by C2. suppose it has a particular equation and that cuts to the another curve at a right angle. अगर ये फैमिली ऑफ कर्व, सपोज ये वन फैमिली ऑफ कर्व है, दैट इज अनदर फैमिली ऑफ कर्व, दैट इज C2 एंड दैट इज C1, एंड दीज आर दैट फैमिलीज कट ईच अदर एट राइट एंगल. यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, देन दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी. दैट मीन्स C1 इज ऑर्थोगोनल टू दैट C2. अब यहाँ पे अगर किसी एक कर्व के फैमिली का इक्वेशन आपको दिया रहता है, सो यू कैन फाइंड द equation of another family of curve by using the differential equation, and that is called as a application of differential equation. that is nothing but orthogonal trajectory. अब यहाँ पे हमने definition लिखी है, how we get that orthogonal trajectory. two families of curves cut each member at right angle is called orthogonal trajectory. जैसे यहाँ पे हमने दो families of curve ली थी, ये जो है that is first, second and third, that is C2. we complete consider it as a complete family of curve as a C2. और ये जो थी यहाँ पे which is a perpendicular to that C2, that is a C1. so these are two families of curves and these are cutting each member. हर एक member जो है उस family में, that cutting the each member to the another family of curve at a right angle, and that is called as a orthogonal trajectory. that orthogonal is nothing but another name to the perpendicular curve. so how we can get the another family of curve which is orthogonal to the given family of curve by using the differential equation. we will see the procedure. suppose यहाँ पे हमें एक कर्व का इक्वेशन दिया है, that is family of curve, that should be in the form of x, form xy equals to 0. यहाँ पे a क्या है? a is a constant और we called it as a parameter. अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है? what is the procedure? we have to differentiate that equation 1 with respect to x. अब जब आप इक्वेशन 1 को x से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे a जो पैरामीटर है दैट इज अ कांस्टेंट, और जब हम डेरिवेट करते हैं किसी कांस्टेंट टर्म को तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है. सो वहाँ पे हमें क्या करना है? वो इलिमिनेट हो जाएगा आपका कांस्टेंट. अगर इलिमिनेट नहीं हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो यू हैव टू use your original equation. from that equation 1 you have to get the values of that a and then you have to put in that differential equation which comes when you differentiate with respect to x. प्रॉब्लम जब आप लोग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन 1 का हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो उसमें टर्म आएंगे एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स. उसके बाद हमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए क्या करना है? व्हाट इज द कंडीशन? यू हैव टू सिंपली रिप्लेस dy by dx इन दैट इक्वेशन 2 by minus dx by dy. अब ये क्यों करते हैं हम? dy by dx को minus dx by dy से क्यों रिप्लेस करते हैं? क्योंकि जो कुछ भी कर्व रहती है that dy by dx is nothing but a slope of tangent to the given curve. that dy by dx is nothing but a slope of tangent to the given curve. और ये minus dx by dy क्या होगा? that is a slope of tangent to the curve which is orthogonal to that given curve. जो कर्व इसको ऑर्थोगोनल रहेंगी उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय दिस. ये उसके रिवर्स रहता है. and when you use that, so finally after solving that differential equation you get the solution, and that solution is nothing but a equation of that another curve which is orthogonal to the given curve. तो ऐसे फॉर्म में हमको वो कर्व मिलती है जो गिवन कर्व को क्या है? ऑर्थोगोनल है. सो दैट इज द प्रोसीजर, वेरी सिंपल प्रोसीजर. सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड सम कांस्टेंट्स, तो वहाँ पे आपको उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. उसके बाद उसमें टर्म्स रहेंगी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स.
उस dy बाई dx को आपको रिप्लेस करना है माइनस dx बाई dy से, और जो कुछ भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू गेट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब नेसेसरी नहीं है कि वो इक्वेशन जो रहेगा इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। समटाइम इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ पोलर, दैट इज r एंड थीटा के फॉर्म में भी कर्व का इक्वेशन रह सकता है, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ r थीटा। यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा आपका a। तो ऐसे केस में क्या करना है, यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा से डिफरेंशिएट करोगे तो वहाँ पे dr बाई डी थीटा r और थीटा की टर्म आएंगी। उसके बाद अगेन आपको क्या करना है, यू हैव टू एलिमिनेट दैट पैरामीटर। अगर इसमें आपका पैरामीटर a रहता है डिफरेंशिएट करने के बाद भी, सो यू हैव टू एलिमिनेट दैट पैरामीटर a बाय यूजिंग इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से आपको रिलेशन निकालना है a के फॉर्म में in terms of r and theta, and then you have to put here. So here a is eliminated from that, and finally what you have to do, you have to replace dr by d theta by minus r square d theta by dr। जैसे हमने यहाँ पे dy by dx को रिप्लेस किया था माइनस dx by dy से, तो यहाँ पे ये स्टेप ध्यान में रखना, dr by d theta is replaced by minus r square d theta by dr। That is the slope of tangent to the given curve, and that is the slope of tangent to the orthogonal trajectory। जब आप ये यहाँ पे पुट करेंगे एंड व्हेन यू सॉल्व इट सो यू गेट द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। सो रिमेंबर दैट dr बाय d थीटा इज रिप्लेस बाय माइनस r स्क्वायर। वहाँ पे एक ज़्यादा टर्म क्या रहती है, माइनस तो रहता है बट हियर इज r स्क्वायर, और इसका रेसिप्रोकल दैट इज d थीटा बाय dr। सो दीज आर टू थिंग्स टू यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज कार्टेशियन में dy बाई dx को रिप्लेस करना है माइनस dx बाई dy से, और dr बाई d थीटा को रिप्लेस करना है माइनस r स्क्वायर d थीटा बाई dr से व्हेन इक्वेशन इज इन अ पोलर फॉर्म। तो ये तो हो गया रिगार्डिंग टू द जनरल मेथड टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, एंड नाउ वी विल सी द प्रॉब्लम्स ऑन दैट। Now we will see the problems on that orthogonal trajectory. Here we have to find the orthogonal trajectory of the parabola y square equals to 4ax. Now how we can get the orthogonal trajectory? First हम लिख लेंगे इक्वेशन, given equation of that parabola is y square is equals to 4ax. We give it equation number 1. उसके बाद क्या करेंगे, we differentiate with रिस्पेक्ट टू x से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy बाय dx इक्वल्स टू 4a। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, सो dy बाय dx 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू 4a। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन आता है दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमको, जो आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है आपका a, तो you have to place the value of that a from your equation number 1। अब हमें पता है कि from equation 1 आपको क्या मिलता है, equation 1 से आपको 4a की वैल्यू डायरेक्ट मिल सकती है। so how you can write that 4a is equals to y square by x। from equation 1 4a is equals to y square by x, so use in equation 2, and therefore equation 2 implies, equation 2 में क्या चेंजेस हो जाएगा, 2y dy by dx इक्वल्स टू यहाँ पे y स्क्वायर बाय x, क्या आ जाएंगे यहाँ पे y स्क्वायर बाय x। अब इफ यू रिप्लेस दैट 2y टू दैट साइड, अगर 2y को यहाँ पे आप लेके जाएंगे, सो इट गिव्स dy बाय dx इक्वल्स टू यहाँ पे y स्क्वायर 2y डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2yx इक्वल्स टू एक y इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दैट इज y अपॉन 2x। अब हमें पता है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू रिप्लेस दैट dy बाय dx बाय माइनस dx बाय dy। नाउ वी रिप्लेस dy बाय dx by minus dx by dy, and therefore above equation become क्या हो जाएगा above equation में, that gives minus dx by dy
इक्वल्स टू dx बाय dy, यहाँ पे माइनस dx बाय dy, ये dy बाय dx रिप्लेस हो जाएगा माइनस dx बाय dy से, और यहाँ पे रहेगा y बाय 2x, यहाँ पे क्या रहेगा y बाय x। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, dy की टर्म इधर ले लेंगे, यहाँ पे 2x ले लेंगे, सो माइनस ऑफ 2x dx इक्वल्स टू y इंटू dy। ओके, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा हमारा इक्वेशन। अब जनरली हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू के फॉर्म में रखते हैं, तो हम यहाँ पे y dy ले लेंगे, y dy इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x dx, सो y इक्वल्स टू के फॉर्म में आ जाएगा, या फिर x और y कंबाइन हो जाएगा फाइनली। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टर्म सेपरेट हो गई है, ये वेरिएबल सेपरेबल से हमने सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रल y dy इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2 भी बाहर ले लेंगे x dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, 2 गेट कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा आपका y स्क्वायर बाय 2 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। सो इन दिस वे वी गेट द required equation of orthogonal trajectory, which is, we can say that, which is required equation of orthogonal trajectory। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ओवरऑल इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c। अब ये 2c भी क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं c1। तो ऐसे फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, यू कैन गेट द मार्क्स। ये और उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सो दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसको कर दो ब्रैकेट, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। अब हम और एक प्रॉब्लम इस पे देखेंगे। Now we will see the another problem on orthogonal trajectory. Here we have the equation that is find the orthogonal trajectory of that confocal conics. So we have to find the orthogonal trajectory of that confocal conics. We have the equation that is x square by a square plus y square upon b square plus lambda equals to 1. That lambda is here parameter. A and b are, these are also the constants. So how we can remove that one by one? We will see this. So given curve is as we have written. We give it equation number 1. अब हमें पता है कि ये कार्टेशियन के फॉर्म में है, so we differentiate with respect to x. So x के साथ differentiate किया तो 2x square का डेरिवेटिव 2x अपॉन a square as it is रहेगा, प्लस with respect to x है तो y square का डेरिवेटिव 2y अपॉन b square प्लस लैम्डा, बट y का डेरिवेटिव with respect to x, so that is dy by dx, and 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा because it is a constant। उसके बाद क्या करेंगे हम, we take that whole term ऑन दैट साइड, यहाँ पे ये ले ली। अब आप बोलेंगे 2 कहाँ पे गया, दोनों साइड में 2 था, यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे भी, सो बोथ गेट ए कैंसल, सो वी गेट ओनली x अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये b स्क्वायर प्लस लैम्डा इस साइड ले लेंगे, सो b स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू माइनस ऑफ, यहाँ पे a जो a स्क्वायर है ये इधर चला गया तो a स्क्वायर आ गया न्यूमरेटर में, इसके साथ y, सो माइनस a स्क्वायर y अपॉन ये x आ गया डिनोमिनेटर में इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और ये जो टर्म थी बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये होल टर्म हमने इधर ले ली, x को डिनोमिनेटर में ले लिया, a स्क्वायर को न्यूमरेटर में भेज दिया। सो अब क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू, ये बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, सो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी वाई बाय डी एक्स। सो सब्स्टिट्यूटिंग, अब यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली है क्योंकि वी हैव given here lambda is a parameter. Okay, so अब lambda को हमें remove करना है, so we put the values of that particular lambda, we get that value from this given differential equation, and now we put in that equation number, कहाँ पे put करेंगे हम, जो हमने differential equation 1 था हमारा, वहाँ पे हम lambda की वैल्यू put करेंगे। अब जब lambda की वैल्यू यहाँ पे आप put करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एज इट इज हमने वैल्यू पुट कर दी,
बी स्क्वायर एज इट इज, सिंपली लैम्डा को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे इस वैल्यू से, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सो अब ये जो एक वाई कैंसिल हो गया और ये एक्स चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे माइनस है एज इट इज, माइनस ये हो गया एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। उसके बाद ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 1 हो गया, इसको विच इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 था, तो इक्वेशन 1 का हमने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल हो गया इक्वेशन। अब इसको रिप्लेस कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाय डी वाई से, माइनस डी एक्स बाय डी वाई से यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, बट यहाँ पे भी माइनस था, तो माइनस माइनस दोनों हो गए प्लस, तो यहाँ से मैंने ये माइनस साइन रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स बाय डी वाई को एज इट इज रख दिया, और इसको हम लेके गए इस साइड, सो इट बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो वी टेक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट गिव्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। उसके बाद क्या हो गया, एक्स वाई ए स्क्वायर गेट ए कैंसल, सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी वाई, सो दैट एक्स वाई, और ये डी एक्स बाय डी वाई हमने इधर ले लिया बाद में, बिकॉज यू हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स, so it become a dy by dx equals to a square minus x square as it is, so y dy by dx as it is, और x चला जाएगा इधर क्योंकि यहाँ पे सभी x के टर्म्स है। तो अब यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, a square by x x square upon x it become a minus x, क्योंकि एक x इसके साथ हो जाएगा कैंसल, तो ये डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद हो जाएगा, इसलिए आई डोंट कैंसल हियर, व्हेन यू सेपरेट द डिनोमिनेटर a square by x minus x square upon x that is a x। उसके बाद क्या करेंगे फिर हम, सो आई विल राइट दैट स्टेप, कंटिन्यू हियर ऑन दैट साइड, सो दैट गिव्स y dy by dx इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय x माइनस x। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, dx को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज हियर आर द टर्म्स ऑफ x, हियर आर y, so y into dy remain as it is, here is a square by x minus x into dx। अब करेंगे यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ y dy इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर बाय x माइनस x into dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू log x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो इन दिस वे वी गेट द सॉल्यूशन। अब बाकी की टर्म यहाँ पे ले लेते हैं, सो y स्क्वायर बाय 2 प्लस x स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ a स्क्वायर log ऑफ x इक्वल्स टू c। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या करेंगे, ओवरऑल इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर लॉग ऑफ x, और ये कांस्टेंट है यहाँ पे 2c लिखो, या फिर इसको c डैश भी किया तो भी चलेगा, सो विच इज, इसको क्या लिख सकते हैं, विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी ऑफ अ गिवन इक्वेशन। सो इस तरह से हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। अब और हम देखेंगे पोलर फॉर्म में। Now here the problem is equation is r raised to the power n equals to a raised to n into sin n theta and we have to find its orthogonal trajectory। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे r raised to n equals to a raised to n into sin of n theta। we give it equation number 1। उसके बाद क्या करेंगे, we differentiate। अब हम करेंगे इसको differentiate with respect to theta। so we get, जब ध्यान में रखना कि जब पोलर फॉर्म में इक्वेशन है, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट है n इंटू आर रेस टू n माइनस 1 इंटू डी आर बाय डी थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे a रेस टू n कांस्टेंट है, सो साइन n थीटा का डेरिवेटिव कॉस ऑफ n थीटा, उसके बाद n थीटा का रिपीट डेरिवेटिव दैट इज ओनली n। ओके,
अब उसके बाद हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए रेस टू एन की। यहाँ पे ए रेस टू एन हो गया पैरामीटर, सो ए रेस टू एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए रेस टू एन एज इट इज रखेंगे यहाँ पे और बाकी की टर्म यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एन एन तो कैंसिल हो गया आपका दोनों साइड, सो ये इज आर रेस टू द पावर एन माइनस वन डी आर बाय डी थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1/, ये टर्म आ जाएंगे इधर 1/, कॉस ऑफ एन थीटा। अब ये ऐसी की ऐसी टर्म आप कहाँ पे पुट करना है आपको, यूज इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में यूज करना है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में, आर रेस टू द पावर एन इज इक्वल्स टू आर रेस टू एन माइनस वन डी आर बाय डी थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, कॉस ऑफ एन थीटा इंटू साइन ऑफ एन थीटा। ओके, सो यहाँ पे आर रेस टू एन, ये टर्म यहाँ पे ले लेंगे हम, आर रेस टू एन अपॉन आर रेस टू एन माइनस वन इक्वल्स टू दैट इज अ tan ऑफ एन थीटा इंटू डी आर बाय डी थीटा। ओके, अब ये टोटल कितना पावर हो जाएगा इसका, सो आर रेस टू एन गेट कैंसल एंड रिमेनिंग ओनली 1/r इक्वल्स टू, क्योंकि देखो क्या हो जाएगा, दैट इज आर रेस टू एन अपॉन आर रेस टू एन एंड हियर इज आर रेस टू माइनस वन। इसको अगर पावर को सेपरेट करो both get a cancel, so 1/r here, sorry that is r raised to minus n, r raised to minus n that is nothing but a 1, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो r raised to 1 हो जाएगा, that is r, तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में r इक्वल्स टू tan ऑफ n थीटा डी आर बाय डी थीटा। अब आगे आप लोगों को पता है कि क्या करना है, you have to replace that dr by d theta by minus r square d theta, so I will write that step on that side। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है हमको, रिप्लेस डी आर बाय डी थीटा बाय माइनस ऑफ आर स्क्वेयर डी थीटा बाय डी आर। कहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 2। देखो अब 2 में क्या चेंजेस हो जाएंगे, दैट आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका tan ऑफ एन थीटा, ये डी आर बाई डी थीटा रिप्लेस हो जाएगा माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर से, फिर एक आर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, यहाँ पे 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर tan एन थीटा डी थीटा बाय डी आर। अब ये आर ले लेंगे इस साइड, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r डी आर, या फिर आप डी थीटा को भी इस साइड ले सकते हैं, सो वी टेक 1/r डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan एन थीटा डी थीटा, सो वी राइट इन दिस वे टू दैट टर्म। अब करेंगे हम इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1/r डी आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ tan n थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब एक बात ध्यान में रखना, अगर ओवरऑल इंटीग्रेशन का रिजल्ट लॉग के फॉर्म में आ रहा है तो योर कांस्टेंट शुड बी टेक इन द फॉर्म ऑफ लॉग, सो आफ्टर दैट आफ्टर गेटिंग द सॉल्यूशन यू कैन सिंप्लीफाई दिस। सो यहाँ पे हमें पता है कि 1/r का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग r, tan n थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ सेक ऑफ n थीटा अपॉन n, मतलब यहाँ पे भी लॉग आने वाला है, सो फाइनली वी टेक हियर लॉग ऑफ c एज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका log r इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ सेक ऑफ n थीटा अपॉन n प्लस log ऑफ c, so we write that log r plus log of sec of n theta, here is a 1/n equals to log of c। अब ये पावर में चला जाएगा आपका 1/n, that is 1/n here we write in this way। Now we can apply here the property of logarithm, so that gives log of r upon sec n theta raised to the power 1/n equals to log of c। दोनों साइड से आपका log क्या हो जाएगा, निकल जाएगा,
सो दोनों साइड से लॉग निकलने के बाद यू गेट r अपॉन दैट सेक ऑफ n थीटा। यहाँ पे हमें इस टर्म ये टर्म मिल जाएंगे। अगर ये यहाँ से पावर निकलना है 1/n, सो यू कैन अप्लाई पावर n ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से पावर n अगर अप्लाई करते हैं तो इस फॉर्म में आ जाएगा r रेस टू n अपॉन सेक n थीटा रेस टू n/n, तो निकल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू c रेस टू n। तो फाइनली r रेस टू n इज इक्वल्स टू c रेस टू n इनटू सेक ऑफ n थीटा। सो फाइनली यू हैव टू अप्लाई द पावर्स n ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे r रेस टू n हो जाएगा, यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे c रेस टू n। तो r रेस टू n इज इक्वल्स टू c रेस टू n इनटू सेक n थीटा। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। और सेकंड इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ कार्डियोइड r इज इक्वल्स टू a इनटू 1 प्लस cos थीटा। तो इसका आंसर शुड बी इन दिस फॉर्म r इक्वल्स टू c इनटू sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आप लोगों को करना है सेम जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे किया है फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए। यू हैव टू यूज दैट सेम मेथड इन दिस प्रॉब्लम आल्सो एंड यू गेट द आंसर। यू हैव प्रोवाइडेड द आंसर, यू हैव टू सिंपली वेरीफाई दैट। अब यहाँ पे करते हैं हम स्टॉप। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अनदर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।